Good morning, students. This is chapter 11, Measurement and Motion of class 6th Science book Horizon, and this is unit 4th. Fine. So in this chapter you are going to study about some measurements and motion, like how many types of motions are there and how do you measure something and what do you mean by really measurement. So before reading this chapter, let's recall some questions. That how do people move about? Can you think of one great invention that revolutionized transportation? What come to your mind when you hear the word measurement? And can you think of two things that you measure very often? And if you measure length, how would you express it? So these are the recall questions which you can recall during before reading this chapter. And what you are actually going to learn about in this chapter is the travel in the transport, the measurement of the length, the units of length, standard units and SI units, motion and the types of motion. So these are the basically topics which you are going to study about in this chapter. So very first is the travel and the transport. So people have developed travel by three main means, like air, water and the land. So earlier, nowadays also people used to travel by three means of transportation, like we use air also, we travel through aeroplane, so we are using air. We travel through ships, we are using water as a means, and we travel on the land also, on the buses, on like on scooty, on your scooter, on a car. Fine. So what we are using three means, like air, water and the land. And next is the early means of transport. For a very long time, like animals, human beings too moved from one place to another on foot. Fine. So पहले हम एक जगह से दूसरी जगह जाना होता तो हम क्या करते हैं, हम पैर यूज़ करते थे अपने. पर हाउएवर इन टाइम ह्यूमन बींग्स इन्वेंटेड फास्टर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट. बट टाइम के साथ हम लोगों ने क्या किया, यातायात की जो साधन हैं वो हमने और भी ज़्यादा फास्टर ढूंढ लिए. Fine. So animals such as camels and horses were not likely the first mode of were most likely the first mode of transport. It is saying जो कि एनिमल्स हैं आपके, जैसे कि कैमल्स हो गए, हॉर्सेस हो गए, ये फर्स्ट मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट है. पहले सबसे पहले हम इन्हीं के थ्रू ही ट्रांसपोर्ट करते थे, यातायात करते थे, या कहीं एक जगह से दूसरी जगह आना हो तो हम पहले एनिमल्स को ही यूज़ करते थे. सो सिंपल बोट्स सच एज राफ्ट, इट इज़ सेइंग कि जो सिंपल बोट्स हैं, जैसे कि राफ्ट, इट यू कैन सी इन दिस फिगर, दिस मैन इज़ rafting a boat. Basically this is the raft, and it were invented to travel down waterways such as rivers. तो रिवर्स में अगर एक जगह से दूसरी जगह जाना हो तो पहले हम इसी को यूज़ करते थे. एंड ये कैसे चलती है, ये बेसिकली हवा के बहाव से, और हवा के बहाव और पानी के बहाव की हेल्प से. और जब इस पिक्चर में जो भी आदमी है उसने एक लकड़ी का डंडा, एक लकड़ी ली हुई है जिसकी हेल्प से उसे मूव कर रहा है, इसे हम ओर बोलते हैं. तो ओर की हेल्प से ये एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं. फाइन. So carts dragged by people or animals were used to transport goods and people. तो पहले जो हम कार्ट्स बनाते थे वो या तो लोग उन्हें घसीटते थे या एनिमल्स घसीटते थे, और हम अपनी चीज़ें को एक जगह से दूसरी जगह लेके जाते थे. एंड द इन्वेंशन ऑफ व्हील वाज अ वेरी बिग स्टेप इन द इम्प्रूवमेंट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन. और उसके बाद जो हमारा पहिए का जो आविष्कार हुआ, जो व्हील का जो इन्वेंशन हुआ, ये एक बहुत बड़ा कदम है ट्रांसपोर्टेशन के इम्प्रूवमेंट में. एंड दिस लेड टू द इन्वेंशन ऑफ कार्स विद व्हील्स दैट कुड बी ईजिली पुल्ड बाय एनिमल्स सच एज बुलक्स एंड दी हॉर्सेस. एंड उसके बाद जैसे ही आपकी पहिए का खोज हो गया, इन्वेंशन हो गया, उसके बाद हमारी जो है कार्ट्स की इन्वेंशन हुई. कार्ट्स, दिस इज़ नॉट द कार, दिस इज़ द कार्ट्स. कार्ट ही जैसे हम बोलते हैं, कार्ट्स का हमारा इन्वेंशन हुआ जिसमें व्हील्स हो, और उन कार्ट्स की हेल्प से जिसमें व्हील्स हैं, एक जगह से दूसरी जगह हम अपने सामान को ले जा सकते हैं यूजिंग द एनिमल्स, बिकॉज दैट कार्ट्स कैन बी इजिली पुल्ड बाय द एनिमल्स. फाइन. एंड अर्ली शिप्स एंड बोट्स यूज सेल्स. अब जो कह रहे हैं कि जो हमारी शिप्स थे, पहले जो हमारी शिप्स थी, बोट्स थी, वो सेल्स यूज़ करती थी. जो कपड़ा आप देख रहे हैं वाइट कलर का इस डंडे पे लगा है, दैट इज़ द सेल्स. एंड ये जो बोट है बेसिकली इट हैवली डिपेंड्स ऑन द डायरेक्शन एंड द पावर ऑफ द विंड फॉर नेविगेशन. तो अगर इसे कहीं भी डायरेक्शन चेंज करनी हो और जाना हो तो ये बेसिकली किस पे डिपेंड रहती है, हवा पे. सो इसका लिमिटेशन ड्रॉबैक हो गया है. फाइन. बिकॉज यू कैनॉट यूज़ इट प्रॉपर मैनर. अगर आपको जाना लेफ्ट है एंड इट इज़ हवा की बहाव इस तरीके से कि आप राइट जा रहे हैं, फाइन. सो ये इसका एक ड्रॉबैक हो गया, तो इस वजह से हमें आविष्कार करना भी ज़रूरी हो गया. सो नेक्स्ट इज़ द लेटर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट. So this was the earlier means of transport. You can see this is the simple raft, this is the animal, it was used to pull the cart fitted with wheels, and this is the sailboat, use the energy of wind for the movement. Right. Now the next is the later means of transport. Now the later means of transport, the next big step was the invention of steam engine. अब उसके बाद जो सबसे बड़ा कदम था आविष्कार का या यातायात में खोज का, वो था हमारा स्टीम इंजन. वो इंजन जो भाप से चलता है. दिस स्टीम इंजन बेसिकली लेड टू द डेवलपमेंट ऑफ रेलवेज. इसकी हेल्प से हमारी रेलवेज़ की डेवलपमेंट हुई. फाइन. लार्ज शिप्स
टू यूज़ द पावर ऑफ स्टीम, जो बड़े बड़े शिप्स हैं हमारे वो पावर ऑफ स्टीम यूज़ करते हैं. द इन्वेंशन ऑफ डीजल एंड पेट्रोल इंजन्स लेड टू द डेवलपमेंट ऑफ मोटराइज व्हीकल्स दैट आर कॉमनली यूज टुडे. अब जैसे पहले हमारा स्टीम इंजन का आविष्कार हुआ, उसके बाद हमारे डीजल और पेट्रोल इंजन्स का भी हमारा डेवलपमेंट हुआ, जिनकी हेल्प से हमारे मोटर व्हीकल्स चलते हैं, जैसे कि हम आज के टाइम पे जो यूज़ कर रहे हैं. फाइन. सो ऑल दिस वर्क ऑन ऑल दिस बेसिकली रन्स ऑन दी पेट्रोल और दी डीजल इंजन्स. एंड लेटर डेवलपमेंट ब्रॉट इन एयरप्लेन्स. उसके बाद आगे क्या हुआ, एरोप्लेन बन गए आपके, हेलीकॉप्टर्स बन गए, सबमरीन्स बन गई. एंड ऑल दिस डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ ट्रांसपोर्ट हैव मेड इट पॉसिबल फॉर ह्यूमन बींग्स टू ट्रैवल टू एनी पार्ट ऑफ द अर्थ. एंड इन सब अलग अलग तरीके के साधनों की वजह से हम ह्यूमन बींग्स किसी भी जगह पे ईज़िली जा सकते हैं अपने अर्थ पे, एक जगह से दूसरी जगह वी कैन ईज़िली मूव. वाइल ह्यूमन्स हैव ऑलरेडी सेट फुट ऑन द मून, और हम लोगों ने पहले ही चांद पर कदम तो रख ही दिए हैं. एंड दैट डे इज़ नॉट फार व्हेन पीपल कैन रूटीनली ट्रेवल टू द मून और द अदर प्लेसेस ऑफ द अदर प्लैनेट्स ऑफ द सोलर सिस्टम. और वो दिन भी दूर नहीं जब इंसान बहुत ईजीली मून तक भी ट्रैवल कर पाएगा और आपके सोलर सिस्टम में जो भी प्लैनेट्स हैं वहाँ तक ट्रैवल कर पाएगा. सो यू कैन सी दिस इज़ द एरोप्लेन, दिस इज़ द स्पेस शिप, or submarine, and this is the steam engine. So all these are the later developments by you use and you travel to any part of the earth very easily and the routinely. Fine. And it is saying next, when we travel we want to know how far our destination is. तो हम जब भी कहीं ट्रैवल करते हैं तो हम जानना चाहते हैं कि कितनी दूर पहुंच गए हैं. फॉर एग्जाम्पल सपोज आप जैसे स्कूल आते हैं, इट इज़ रिटन ओवर है दैट वी मे वांट टू नो हाउ फार योर स्कूल इज़ फ्रॉम योर हाउस. सपोज आप जानना चाहते हैं आपका घर आपके स्कूल से कितना दूर है, उसके लिए आप क्या करेंगे. फॉर दिस यू वुड नीड टू मेजर द डिस्टेंस बिटवीन योर स्कूल एंड योर होम यूजिंग ए मेथड दैट इज़ रिलायबल एंड द एक्यूरेट. तो उस चीज़ के लिए आप क्या करेंगे, आप डिस्टेंस को ढूंढेंगे, मापेंगे आपके घर से लेके स्कूल तक का, और उस डिस्टेंस को मापने के लिए यू विल यूज़ सम मेथड. आप कोई तरीका अपनाएंगे, उस मेथड को यूज़ करेंगे, और वैसा मेथड जो कि सही हो, एक्यूरेट हो, रिलायबल हो, ट्रस्टवर्दी हो, जो आपको सही जानकारी दे बेसिकली. फाइन. सो बेसिकली लेट अस लर्न मोर अबाउट द मेजरमेंट. तो अब उन्हीं रिलायबल मेथड्स के बारे में हम चैप्टर में पढ़ेंगे. सो ये जो भी रिलायबल मेथड्स है ये सब किस टॉपिक के अंदर है, इट इज़ अंडर द मेजरमेंट. सो व्हाट यू मीन बाय मेजरमेंट नाउ? Measurement is nothing, it is the like when you go to a tailor, so what he does, he actually he basically see the size of your hands, your neck, fine, your head. So it is finding the size of the head, finding the size of the hand, it is finding the size of the leg. Fine. This finding of length, this finding of size, and the finding of the quantity basically is known as the measurement. So measurement is what? It is the process of finding the length, the size or the quantity of a substance, and it is called the measurement. And for the sake of uniformity, आप देखो, अब सपोज़ मैंने टेलर को भी छोड़ो, सपोज़ आई हैव सम क्लॉथ जो कि 10 सेंटीमीटर लंबा है, ठीक है. तो अगर मैं उस कपड़े को मेरे घर में जो भी इंची टेप रखा है मैं उससे मापूं, या टेलर के पास जो इंची टेप है उससे मापूं, या किसी भी दुनिया के कोने में कोई भी आदमी जिसके पास इंची टेप है उससे मापूं, तो वैल्यू क्या रहेगी, सेम रहेगी, फिक्स हो गई, क्योंकि हमने मेजरमेंट किससे लिया, इंची टेप से लिया, और इंची टेप में आपके मीटर सेंटीमीटर का आपका मेजरमेंट रहता है. सो वो आपका फिक्स आएगा. फाइन. फॉर दैट यू हैव यूज द फिक्स्ड क्वांटिटी. फिक्स्ड क्वांटिटी यूज़ करने से क्या हुआ, उस कपड़े की वैल्यू हर जगह सेम आई. तो यहाँ पे यूनिफॉर्मिटी है, सेम समांतर है, वहाँ पे समानता है, ठीक है. तो हम चाहते हैं कि हर जगह समानता बनी रहे, आपके यूनिट्स में, आपके मेजरमेंट में, आपके प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग में एक समानता बनी रहे. उसके लिए हमने क्या किया, कुछ स्टैंडर्ड क्वांटिटी फिक्स कर दी. उन्हीं स्टैंडर्ड फिक्स्ड क्वांटिटी को जिनको यूज़ करके हम किसी चीज़ को मापते हैं, उसी स्टैंडर्ड फिक्स क्वांटिटी व्हाट वी आर कॉलिंग द यूनिट. सो फॉर द सेक ऑफ यूनिफॉर्मिटी, it is necessary to use a standard fixed quantity for measurement, and a standard fixed quantity that is used to represent measurement is called a unit. For example, when we measure length we may use units such as centimeter, inch, meter, kilometer and the miles.
सो दीज आर दी फिक्स्ड स्टैंडर्ड यूनिट्स विच वी कैन यूज़. सपोज अगर मैं उस कपड़े को सेंटीमीटर में माप रही हूँ तो किसी भी इंची टेप से माप लूँ, सेंटीमीटर में उसकी वैल्यू सेम रहेगी. मैंने मीटर में मापा, मीटर में सेम रहेगी. इंची टेप से मैंने इंचेस में मापा, इंचेस में भी सेम रहेगी, बिकॉज दैट स्टैंडर्ड क्वांटिटी इज फिक्स्ड नाउ, सो इट विल बी रिमेन सेम. बट सपोज अगर मैं कहूँ किसी को भी कि मुझे कपड़ा मापना है, चलो अपने हाथ की चौड़ाई से मापो इसको, मेरे हाथ का जो साइज़ है मैं उससे मापने लगूंगी. तो अगर मैं किसी बच्चे को बोलूँ इस कपड़े को अपने हाथ के साइज़ से मापो, तो वहाँ पे नंबर ऑफ़ हैंड्स ज़्यादा रहेंगे. और उस कपड़े को अगर मैं अपने ही हाथ से मापूँ तो वहाँ पे नंबर ऑफ़ हैंड्स जो है कम रहेंगे. बच्चे में ज़्यादा रहेंगे, मुझ में कम रहेंगे. वाई? बिकॉज मेरे हाथ के साइज़ में और बच्चे के हाथ के साइज़ में डिफरेंस है. तो पहले के टाइम पर हमारे पास फिक्स्ड क्वान्टिटीज़ नहीं होती थी, एक अंदाज़ा रहता था और उस अंदाजे के हेल्प से हम अनुमान लगाते थे कि उस चीज़ की क्या लंबाई, चौड़ाई या गहराई रही होगी. फाइन. सो ये अंदाज़ा बेसिकली ज़्यादा नहीं चल सकता क्योंकि हर एक पर्सन की जो बॉडी है या जो उसका साइज़ है वेरी करता है. कोई पतला है, कोई मोटा है, किसी का हाथ छोटा है, किसी का बड़ा है. सो ऑल दीज आर दी अंदाजास. फाइन. दीज आर नॉट दी करेक्ट एक्यूरेट थिंग. दीज आर नॉट रिलायबल मेथड्स. सो रिलायबल मेथड्स को ढूंढने के लिए ही हमारे पास क्या हम उसके लिए क्या पढ़ रहे हैं, यूनिट्स पढ़ रहे हैं. सो यूनिट्स क्या है? एक फिक्स्ड स्टैंडर्ड क्वांटिटी है. Fine. So you can see here now, earlier people did not use standard units to measure length. पहले लोग किसी भी यूनिट को मेजर करने के लिए, लेंथ को मेजर करने के लिए कोई स्टैंडर्ड यूनिट नहीं यूज़ करते थे. बट इट वॉज़ वेरी कॉमन टू यूज़ यूनिट्स बेस्ड ऑन लेंथ ऑफ हैंड, फीट, आर्म एट्सेट्रा. एंड दीज वर नोन एज हैंड स्पैन, क्यूबिट एंड दी फिथॉम. फाइन. सो पहले जो हम यूज़ करते थे यूनिट्स, उनका नाम क्या है? हैंड स्पैन, cubit and the phythom. So now in the next video I will discuss about these units, these basically methods by which we use earlier to measure length.